Good morning, students. So, before starting a class for the day, let me once again remind you about the things what you have to follow in your FS. That is coming Sunday, you are having an English exam. Already two exams you appeared. That was the last Sunday, 16th. And let me tell you, you have to keep only one copy. In that copy, already you might have written your science students might have written physics and physical or Hindi, and commerce students business studies and business no accounts and physical or Hindi, and art students history and physical or Hindi. So in the same copy, you have to write your next exam, whatever you're having, chemistry or English, whatever exam you're having, write it on the same copy. Don't make separate copies for separate subjects. And soon after the exam is over, next month starting onwards, we'll be asking you to submit the copy in the school. So maintain it properly. And regarding the timing, once again, let me remind you, your English exam, if it's at 3 o'clock, correct 2:55, I'll be putting the question paper in your main group. Okay, you will get the question paper in the English main group, and after you get the paper, when you start the paper, you have to finish it within the time given and submit it in the query group. So please note, you have to submit it not in the main group, you have to submit in the query group. And note that the paper, let me tell you in advance, it's a lengthy one. So don't waste your time looking here and there or taking any source to write or contacting your friend or like that. If you write it properly in the correct manner, putting in focus the word limit and all, your paper will be over by 1 hour 15 minutes. And after that, only after 1 hour 15 minutes, that is, if the exam starts at 3 o'clock, at 4:15, your query group will be open. Don't send your paper before that. And I will open the query group after exam starts at around 1 hour 15 minutes. That is, if the exam starts at 3 o'clock, at 4:15, I will open the group for you. And in that 15 minutes, you have to send your paper. And one more thing, you will be having enough and enough to write in English, and each page today itself, make a yard to on Saturday itself, write your name, class, subject on all the papers. Sheets ago, you'll be having at least 5 or 6 pages in English. In every page, you should have your name, class, subject, and date mentioned. If any sheet of paper is without your name or class and subject, that paper, I will strike it off on that page. You will not get a single mark on this page. Okay. So write your name, class, subject today, on Saturday itself, prior to the exam start. Before that itself, write your name, class, subject on every sheet of paper, not the first paper. In all sheets should bear your name, class, subject, and date. Hope it's clear. The question mark should be properly mentioned. If any sheet of paper is there without your name, I will strike it off. I will not check that paper. Is it clear for you? Even after continuous advices and suggestions and instructions, students are not bothered to follow the instructions properly. Okay. So if you follow it, it will be well and good for you. So don't forget to write your name, class, subject, and date of examination on each and every paper. Is it clear? Now let's finish off the chapter today. So the Roger's son's mother was very happy because her son got the smell back. But Joe is not happy. Joe is asking, but Daddy, what?
देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? तो अभी तक तो एनिमल्स भागते थे उनसे, क्या अभी भी वो भागते हैं क्या? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। और वो कंग के इस गंदे स्मेल से उनका एडजस्ट हो गया बाकी एनिमल्स को, और वो उनसे खेलने के लिए रेडी हो गया। बट इवेंचुअली, तो पापा ने इवेंचुअली बोला, और जो के छोटे मुंह में वो वर्ड नहीं आ रहा तो बोला, तो पापा इवेंचुअली क्या है? मतलब इवेंचुअली के लिए पूछ रहा है। इन ए लिटिल वाइल, मतलब थोड़े टाइम पे। दैट वाज स्टूपिड मम्मी, तो जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मम्मी को। आप लोग को मालूम है वो जो मम्मी को स्टूपिड क्यों बोली? It was not, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her. तो जो नहीं, जैक है ना, इस मदर को जस्टिफाई कर रहे थे, और जो के उस देखने से जैक को लगा कि जो जैक के मदर यानी जो के ग्रैंड मदर को ही डिफेंड कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। और समथिंग एज ऑड। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हेवी हेड इन द पिलो। तो एक काम करो, तुम जल्दी लेटो और सो जाओ। हो गया, बहुत ही हो गया। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शो। तो उन्होंने अपना कर्टन एडजस्ट किया ताकि बाहर का रोशनी कुछ अंदर ना आए, बच्चे को डिस्टर्ब न करे सोने नींद आने में। एंड टिप टॉप टू द डोर, और चुपचाप चला गया बाहर। इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी अस्लीप। उनको लगा कि बेटी सो गई, इसलिए वो बिना आवाज किए पैरों से ऐसे चला गया बाहर। बट व्हेन ही टर्न शी वाज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स। वो कवर्स के ऊपर, मतलब बेडशीट के ऊपर खड़े थे, बैठे थे, एंड स्टेयरिंग एट हिम। पापा को ही दूर से देख रहे थे। तो जैक गुस्सा आ गया। हे, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। जल्दी बेडशीट के अंदर होके सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप। तुम्हारे छोटा भाई ऑलरेडी सो गया, तो तुम क्यों रुका हो? जल्दी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग डैड। और वो केयरफुली बेड पे बैठा और बोला, डैडी व्हाट? तो उन्होंने डैडी से कुछ बोलना चाहता। डैडी पूछा, क्या हुआ बेटा? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी ए स्टोरी दैट दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक बैन एंड हिट दैट मॉमी। तो पापा कृपया ये करना कि कल जो स्टोरी आप बोलेगा ना, उसमें ये स्टोरी बोला कि विजार्ड ने मम्मी के सिर पे मारा। इस तरह का कहानी सुनना मुझे। हर प्लम बाम चॉप फोर्सफुली, और जो हाथ ऐसे करते हुए बोला, ऐसे विजार्ड ऐसे मम्मी के सिर पे मारने का कहानी बताना आप कल। राइट ओवर द हेड, सिर पे ही मारना। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। पापा बना क्या? नहीं, ऐसा कहानी नहीं होगा। द पॉइंट इज दैट द लिटिल कंग लव्ड हिज मम्मी। बात यह है कि सारे whatever भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तो सब अपने अपने मम्मी से प्यार करते हैं। इसी तरह ये कंग भी अपने मम्मी से प्यार करते बहुत। मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स। जंगल में कितना भी एनिमल्स हो, उन सबसे ज्यादा प्यार रॉजर कंग अपने मम्मी से करते हैं। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। और एक मदर ही जानते हैं अपने बच्चे के लिए सबसे राइट थिंग क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज फॉलो योर मदर। शी नोज व्हाट इज राइट फॉर यू। Never ever shed it. You should be the reason for shedding the tears of your mother. Okay. No, tomorrow you say he hit that mommy. Do it. नहीं पापा, कल आप ऐसा कहानी बताना जिसमें मम्मी को मारना ही है। So what is the thing? Small children, they will not understand about the moral things of life. They want things to happen in a happy manner. उन लोगों को मालूम नहीं है कि सोसाइटी का हार्ड थिंग्स क्या होता है। हमें अपना फैमिली, अपने सोसाइटी का अच्छी चीजों को, रीति रिवाजों को फॉलो करना है। शी किक द लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव। ग्रेट मतलब उठ बैठ गया। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। और अपना फीलिंग्स हमेशा वो स्प्रिंग्स मतलब बेडशीट पे, बेड पे बैठ के बोलते हैं हमेशा। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर। कितना भी किसी के बारे में कंप्लेंट बोलना है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, तो वो हमेशा स्प्रिंग मतलब बेडशीट के ऊपर बैठ के बोलते हैं। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। और अभी क्या है, वो बहुत ही सीरियस थे, बिल्कुल भी हंस नहीं रहते। सेड डैडी, वेल वील सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट। देखता हूँ मैं, कल देखते हैं, अभी तुम एक काम करो, सो जाओ।
Stay on the bed. You are a good girl. तुम एक अच्छे गर्ल हो. He closed the door and went downstairs. वो बच्चे को उधर रख के दरवाजा बंद करके नीचे चले गया. Claire had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old t-shirt of his on top of a maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. तो नीचे गया तो देखा कि अपने वाइफ क्लेयर अपने ड्रेस के ऊपर जैक का एक पुराना टी शर्ट पहना हुआ है और ब्रश से इसको चेयर का रेल को ब्रश से पेंट करना स्टार्ट किया था. मैटर्निटी स्मोक मतलब एक ड्रेस है, मैटर्निटी ड्रेस घर पे पहने वाला ड्रेस, उसके ऊपर जैक का एक शर्ट पहना था और वो ब्रश को डिप करके पेंट करना स्टार्ट किया. Above him footsteps vibrated और एकदम से नीचे पहुंचा तो ऊपर से फुटस्टेप्स का आवाज सुनाई दिया, मतलब जो बेड से नीचे आने की कोशिश कर रहा है. तो जैक ने चिल्लाया, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आके तुम्हें मारूं? ऐसे बोला तो उसी टाइम आवाज बंद हो गया. द फुटस्टेप हेसिटेटेड. जो शायद नीचे आने वाला था तो जैक ने बोला, बेटा क्या मैं आके तुम्हें मारूं? ये सुनते ही फुटस्टेप स्टॉप हो गया. There is a long story, Claire said. तो बहुत बड़ा कहानी सुना है आपने. The poor kid, she answered, and with utter weariness, मतलब बहुत थके थके, ये बहुत खतरनाक का स्टोरी बोल के थक गया था वो. Tiredness was his wife's labor. वो देखा अपने वाइफ को काम करते हुए. The woodwork, a cage of moldings, a rails and baseboards, मतलब बहुत सारा फर्नीचर चारों तरफ और उसके बीच में खड़ा हुआ हमारा जैक को थोड़ा इरिटेशन फील हो रहा था क्योंकि उसके माइंड में अभी भी क्या उन्होंने अपने बेटी को सुनाया कहानी सही था, क्या कंक्लूजन सही था, ये सोच के वो एक कंफ्यूज सिचुएशन में था. तो वो इधर अभी आया है तो बीवी को हेल्प करने के लिए, तो एक डिलेमा में थे वो, क्या वो अभी जो कहानी उन्होंने कंक्लूड किया था अपने बेटी के लिए क्या वो सही था कि नहीं. Was the woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them was half old tan, half old मतलब yellowish brown कलर का, and half new ivory और आधा new ivory कलर का था. And he felt caught an ugly middle position और वो एक ugly middle position में था कि वो एक तो है कि उनको वाइफ को हेल्प करना है, दूसरी तरफ वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गया कि क्या मैंने मेरे बेटी को जो कहानी सुनाया था वो सही था कि नहीं. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, और उन्होंने अपने वाइफ का प्रेजेंस उधर महसूस किया था, बट अपने बेटी को सुनाए कहानी के बारे में सोच के वो ऐसे कंडीशन में था कि वो अपने वाइफ को हेल्प करने का मेंटालिटी में नहीं था. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. वो उनको हेल्प करने के लिए, उनको टच करने के लिए, उनसे बात करने के मूड में नहीं था कि वो यही सोच रहा था कि क्या मेरे बेटी को सुनाया कहानी सही था. So my dear students, that's the end of this chapter. Should wizard hit mommy? Let me give you the homework for the day. As you all know, after 2 days, means Friday and Saturday is there for our exams, and I'm damn sure that my dear students are very serious. I expect 100% honesty and sincerity from you, and I don't think that you will do any sort of malpractices to me. And with that expectation, let me give you some revision questions. Okay. From the first is from the chapter Deep Water. First question, explain this line. Roosevelt ने बोला है, what you have to fear is fear itself. What you have to fear is fear itself. लेसन के लास्ट में रूजवेल्ट ने बोला एक लाइन कोट किया है हमारा डगलस ने. तो व्हाट यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. इसको एक्सप्लेन करो. सेकंड क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी. डू यू थिंक डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट. उन्होंने कहानी के अंत में एक सोल्यूशन निकाला था एनिमी को घर से भगाने के लिए. क्या इस स्टोरी का बेस्ट कंक्लूजन है वो लिखना है आपको. डू यू थिंक डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट.
थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडिको। आपको मालूम है गांधी जी के साथ साथ उसमें एक कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला। एज पर द चैप्टर व्हाट डू यू नो अबाउट राजकुमार शुक्ला? इंडिको चैप्टर में से व्हाट डू यू थिंक अबाउट राजकुमार शुक्ला? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द रैट ट्रैप। इसमें आपको मालूम है हमारा पेडलर या रैट ट्रैप कुछ अजीब सोच आते उसको। द होल वर्ल्ड इज ए बिग रैट ट्रैप। तो पूरा दुनिया एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। एक्सप्लेन। द होल वर्ल्ड इज ए बिग रैट ट्रैप। दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर योर रिविजन। डू इट योरसेल्फ if you know the chapter very well. Yeah, read the chapter and write the answer and send it to me before 1 p.m. tomorrow. Thank you. Have a wonderful day.